سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سخی سرور کئی گھنٹوں سے کوئٹہ روڈ بلاک ہونے کا معاملہ ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیوروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ اے سی کسٹم اور صدر گڈز ٹرانسپورٹ عبدالسلام ناصر کے مابین مذاکرات ہوئے۔ سنگل ٹینکی والے ٹرکوں سے ڈیزل نہیں نکالا جائے گا، ایسا کہنا تھا اے سی کسٹم کا۔ مزید کل صبح 10 بجے ملتان کلیکٹر ہاؤس میں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ میں فیصلہ ہوگا۔ مذاکرات جزوی طور پر کامیاب ہونے پر ڈرائیوروں نے روڈ کو کھول دیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سخی سرور سے، جہاں پر کئی گھنٹوں سے کوئٹہ روڈ بلاک ہونے کا معاملہ ہے۔ ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیوروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اے سی کسٹم اور صدر گڈز ٹرانسپورٹ عبدالسلام ناصر کے مابین مذاکرات ہوئے۔ سنگل ٹینکی والے ٹرکوں سے ڈیزل نہیں نکالا جائے گا۔ مزید کل صبح 10 بجے ملتان کلیکٹر ہاؤس میں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ میں فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب ملتان میں نواں شہر ڈیرہ اڈا روڈ پر کراؤن فیلئر کا معاملہ۔ کراؤن فیلئر کی مرمت کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ شہر اولیاء کی سڑکوں پر گڑھے پڑنے کا سلسلہ رک نہ پایا۔ مختلف علاقوں کی سڑکوں پر بارش کے بعد گڑھے پڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نواں شہر چوک سے ڈیرہ اڈا چوک کے درمیان سڑک پر کراؤن فیلئر پڑنے سے روڈ پر گڑھا پڑ گیا۔ عارضی ریلیف کے لیے ڈسپوزل اسٹیشن ڈویژن نے پمپ آپریشنل کر دیا۔ ہر جگہ بند رہتے ہیں اور پھر بسوں وغیرہ کا بھی ہوتا ہے کہ بس کے اسٹاپ سے اسکپ ہونے لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر دقت آتی ہے جانے وغیرہ۔ دوسری جانب کراؤن فیلئر کی مرمت کے لیے پائپ موقع پر پہنچا دیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سیوریج ساؤتھ ڈویژن کی جانب سے رپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کر دی گئی۔ ہم نے یہاں اپنا اسے اپنا کرڈن آف کر کے اپنا پائپس ہمارے آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج رات سے ہم یہاں کام سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ مین ہول ٹو مین ہول ہم وایا ہے کوئی 120 سے 130 فٹ کا۔ ایم ڈی واسا نے موقع پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کا حکم جاری کیا۔ واسا حکام کا کہنا تھا کہ 24 انچ قطر کی بوسیدہ سیوریج لائن کی مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ بلال نیازی، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں میگا سیوریج لائن بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے جنرل بس اسٹینڈز کی مصروف روڈ پر تیسرا بڑا خطرناک گڑھا بن گیا۔ انتظامیہ نے روڈ عارضی طور پر بلاک کر کے 2 گڑھوں کا مرمتی کام شروع کر دیا۔ رحیم یار خان میں ضلعی اور میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی بڑی نااہلی اور مجرمانہ غفلت سامنے آ گئی۔ میگا سیوریج لائن بیٹھ جانے سے جنرل بس اسٹینڈ کی مصروف روڈ پر تیسرا گڑھا بن گیا۔ گڑھا 5 فٹ چوڑا اور 25 فٹ گہرا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 سال سے روڈ پر خطرناک گڑھے بنے ہوئے ہیں، جس سے آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ کاروبار بند ہونے اور سیوریج لائن کی بدبو سے زندگی اجیرن ہو گئی۔ انتظامیہ کو تو کوئی کارکردگی نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کام ہوتا نہیں۔ یہ آتے ہیں پکچر بناتے ہیں، پکچر بنا کے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو ٹھیکہ دے رہے ہیں، کوئی ٹھیکہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں۔ عید سر پہ کاروبار یہ دیکھ لیں، ہماری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں روڈ کے اوپر، یہ ساری ٹھیک ہے نا، کدھر جائیں ہم؟ پہلے بھی مشکلات تھی، وہ بھی یہ گڑھا ہو گیا۔ اس سے 2-3 مہینے پہلے جو ہے وہ 3 گڈھے میں گر گئے تھے بچے، وہ بھی چلا ہے، ابھی ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ سڑک کی بندے سے علاقہ میں کہتے ہیں کہ انتظامیہ سست روی سے کام کر رہی ہے۔ 3-4 دن سے لگے ہوئے ہیں یہ اپنی دکان خالی کرنے کے لیے۔ ہمیں بس کہہ گئے ہیں کہ آپ نے یہ دکان خالی کرنی کریں، نہیں تو ہم آپ کا سامان باہر پھینک دیں گے، دھمکی دے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں ابھی تک۔ ہم تو خالی کر رہے ہیں اپنی دکان، لیکن کام کریں تو پھر پتہ چلے نا، کام ان کے کرنا نہیں ہے، بس عوام کو پریشانی کرنی ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ گڑھا بند کر کے سڑک کو فوری طور پر مرمت کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ خبر شامل کروں آپ کو بتائیں کہ خانپور کے شہری علاقے جٹکی بستی میں سڑکیں، گلی محلے سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ خانپور کے شہری علاقہ جٹکی بستی کی سیوریج لائن ناکارہ ہونے سے سینکڑوں گھروں کو گندے پانی نے گھیر لیا۔ سڑکیں، گلی محلے سیوریج کے پانی سے بھر گئے۔ اہل علاقہ سیوریج کے گندے پانی سے گزرنے پر مجبور۔ سیوریج کے جمع گندے پانی سے علاقہ مقیم مختلف بیماریوں کے شکار میں مبتلا ہونے لگے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ میونسپل کمیٹی عملہ، اسسٹنٹ کمشنر سمیت MNA اور MPA کو بارہا شکایات کی، مگر سیوریج سسٹم بحال نہ ہو سکا۔ تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے پانی کھڑا ہے، لوگ گندے پانی میں سے گزرتے ہیں، بار بار لوگ یعنی کہ جاتے ہیں بلدیہ کے پاس، لیکن یہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی یہاں کے متعلقہ حکام ہیں نہ یہاں پہ آتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں۔ 4-5 سال سے کھڑا ہے سر، جب سے یہ لائن بنی ہے نا چلی نہیں ہے،
हमें पता है असगर शाह है इधर का सेंट्री इंस्पेक्टर, उससे भी कहते हैं, वो भी हमारी नहीं सुनता। शेख फयाज बट साहब के पास भी गए, वो भी नहीं सुन रहे। चौधरी अरशद साहब यहाँ से गुजर के जाते, वो भी नहीं सुन रहे। घरों में पानी, हम इतने परेशान हैं, हद से भी ज्यादा। हमारे घर का आसपास साथ भी, इस दरवाजे का आगे भी पानी, इतना पानी है बहुत ज्यादा, हमारे को निकलने को रास्ता नहीं मिलता। जो अगर खुदा ना करे कोई फौतगी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं हमें है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आमिर सोहेल, रोही न्यूज़, कानपुर। आगे बढ़ आपको बताएं, खानेवाल जिला इंतजामी के तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। पहली बारिश ने पोल खोल दिया, 25 लाख मालियत से ताज़ीन व आराइश किया गया। रेलवे अंडरपास पहली बारिश में टूट फूट गया। इंतजामिया ने 25 लाख मालियत से रेलवे अंडरपास की तज़ीन व आराइश 2 माह कबल करवाई थी। मंसूबे की तकमील पर सरकारी इंजीनियरिंग ओके की रिपोर्ट पर ठेकेदार को रकम अदा कर दी गई, मगर पहली बारिश ने अंडरपास के नाकस मटेरियल का पोल खोल दिया। शहरी हैरान रह गए। 2 माह पहले ये बनाया गया, तो ये आपके सामने ये सूरत हाल है। तो इस पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए हैं और जिसके सामने ये खंडात की सूरत में बन रहा है। तो इंतजामिया से उम्मीद है कि इसके बारे में दोबारा आप देखें। अंडरपास पुल के साइड जगह जगह से बैठ गई, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, स्ट्रीट लाइट्स टूट गई, 3 लाख के लगाए गए खजूर के दरख्त सूख गए। शहरी कहते हैं कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारों को सजा दी जाए। लाखों रुपए की मालिकत से ये पुल बनाया गया, उस पर इसके काम करवाया गया, लेकिन पहली बारिश ने ये सारा चिट्ठा उनका खोल दिया है। बाकी इसकी लाइट का भी इंतजाम किया था, लाइट भी सिर्फ चंद दिन चली है। उसके बाद यहाँ पौधे भी लगाए थे, वो भी पानी लगा नहीं है, वैसे सूख गए हैं। इंतजामिया नजर नहीं आ रही। हम कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत तरक्याती कामों के लिए खतीर रकम जारी करती है, मगर अफसरान और ठेकेदारों ने मिली भगत से कौमी खजाने को लूटा है। रेलवे अंडरपास पर जगह जगह पड़े ये गड्ढे जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीफ मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। साबिक DHO महकमा सेहत की रिहाइशगाह खंडर में तब्दील। शहर के वस्त में मौजूद सरकारी इमारत नशइयों की आमाजगाह में तब्दील। शहरी कहते हैं इमारत कई साल से वीरान पड़ी है। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद महकमा सेहत की तारीखी इमारत खंडरात में तब्दील हो गई। साबिक DHO हेल्थ की रिहाइश गाह में नशइयों ने डेरे जमा लिए। शहरियों का कहना है कि रिक्शा माफिया ने भी बिल्डिंग को वीरान पार्क समझकर पार्किंग स्टैंड बना लिया है। महकमा सेहत की तारीखी इमारत गुज़िश्ता 15 साल से भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। नशे करदन सार मार रहा है 15-20 बंदे होने वालों नशा कर चले ना वार होर नवे आवे ना। गवर्नमेंट एक बार बात करे तो कोई दफ्तर बना सकती है या अपने इस्तेमाल है ना सकती। शहरियों का कहना है कि कई बार जिला इंतजामिया को दरखास्त दी मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। दूसरी जानिब महकमा सेहत के तर्जमान का कहना है कि हुकूमत को इस बारे में दरखास्त लिख चुके हैं। मदर एंड चाइल्ड कम्प्लेक्स बनाने के लिए पहले भी बातचीत जारी रही मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कोशिश है कि इमारत पर मदर एंड चाइल्ड कम्प्लेक्स बना दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को फायदा हो। DHO रेजिडेंट्स का ये है कि हमने यहाँ पे काफ़ी अरसे से जो वीरान पड़ी हुई है, यहाँ पे महकमा हेल्थ ने एक MCH सेंटर तजवीज़ किया हुआ है और वो स्कीम पिछले 10 साल से पेंडिंग है। अगर यहाँ पे MCH सेंटर बन जाए तो ये बहुत बड़ा अवामी मसला जो है हमारा हल हो जाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर जिला इंतजामिया महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और तारीखी इमारत को इस्तेमाल में लाया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मियांवाली के शहरी सैर व तफरीह से भी महरूम हो गए। शहर का इकलौता पार्क उजाड़ मंजर पेश करने लगा। पानी न मिलने की वजह से पार्क में पौधे भी खुश्क हो चुके हैं। मियांवाली का इकलौता ड्रीम लैंड फैमिली पार्क उजाड़ मंजर पेश करने लगा। झूले टूट फूट का शिकार हो गए। पौधे पानी न मिलने की वजह से सूख चुके हैं। शहरियों का कहना है कि पार्क में लगी घास जलकर खुश्क हो चुकी है। इसको ताला लगा हुआ है और सब ग्रीन बेल्ट तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। झूले जो भी मकसद है कि बच्चों के मुतालिक यहाँ सैर सयाहत के लिए के मुतालिक हैं, खिलौने झूले वगैरह वो ख़त्म हो चुके हैं और बल्दिया की कोई तवज्जो नहीं। शहरियों का कहना था कि पार्क पर खर्च हुकूमत के करोड़ों रुपए जाया हो चुके हैं। शहर भर में सैर तफरीह के लिए दूसरी कोई जगह दस्तयाब नहीं। जिले इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये मियांवाली का पहला पार्क है जो बनाया गया था बच्चों को, जिसके अंदर झूले लगाए गए थे, झील थी और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ कुछ भी हर चीज सुनसान नजर आती है। पार्क का सालाना ठेका न होने के बायस इसे ताला लगा दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी सैर व तफरीह के हवाले से मुसलसल ज़हनी अजियत का शिकार हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आपको बताएं कि कितने पेबंद मजीद लगाएं, आखिर कब तक भरम बचाएं, बच्चों को अपने भूखा सुलाएं। महंगाई के बायस तामीराती काम ठप होने से मुल्तान के दिहाड़ीदार मजदूरों का चूल्हा ठंडा होने लगा है।
हालात की तलखी के लगाए गए जख्मों पर महंगाई और काम ना मिलने का नमक दिहाड़ीदार मजदूरों को निढाल करने के दर पे है। मजदूर कहते हैं कई दिन दिहाड़ी नहीं मिलती। आखिर में गवार और मायूस होकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। 12 दिन हो गए भाईजान, दिहाड़ी नहीं लगी, कारोबार है नहीं, और मकान मालिक किराया मांग रहा है, वो तंग कर रहा है। 6 तरीक को उसको किराया नहीं दिया जा रहा, बिजली का बिल आया भरा पिछले महीने, वो नहीं भरा, इसी वजह से कि दिहाड़ी नहीं लगती, कामकार है नहीं। 2 हफ्ते हो गए काम नहीं लगा, घर दूर है, वहाँ से आते हैं यहाँ अड्डे पे खड़े होने के लिए, यहाँ काम नहीं होता। अब दिहाड़ी देख लो कितनी महंगी है, दिहाड़ी बहुत सस्ती है और महंगाई ज्यादा है। मजदूरों का कहना है कि किराया लगाकर आते हैं, सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं, फिर भी काम नहीं मिलता। घरों में भी तंगदस्ती के बाइस तल्ख कलामी होना शुरू हो गई है। 3 हफ्ते हो गए हैं इधर खड़े खड़े, काम नहीं लगता है। घर से आते हैं फिर वापसी चले जाते हैं, कोई भी नहीं लेके जाता है। इधर रोजाना झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे से। क्या वजह है? काम की ना होने की वजह है। पेट्रोल इतना महंगा है, रश्के वालों से पूछो तो वो कहते हैं 40 रुपए किराया है। लिफ्टें मांग मांग कर यहाँ आते हैं, 1 बजे तक बैठे रहते हैं, काम नहीं लगता। यहाँ लंगर खाने जाते जाते रोटी खा जाते हैं, बच्चों को भूखा देखकर फिर रोना आता है। एक जाने बढ़ती महंगाई तो दूसरी जाने बेरोजगारी ने मुल्तान के मजदूरों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। सारा दिन काम का इंतजार करने के बाद मुल्तान के दिहाड़ीदार मजदूर जब खाली हाथ घर वापस लौटते हैं तो भूख से बिलखते बच्चों को देखकर सिर्फ इतना ही कहते हैं, दिहाड़ी नहीं मिली, रोटी कहां से लाऊं। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा मियां मासविन शफीक, मुल्तान। आगे बढ़ आपको बताएं, मियां वाली में अब नरम बिस्तर पर भी शहरी सोना भूल जाएं। मुख्तलिफ कंपनियों के मैट्रेस की कीमत में 25% इजाफा हो चुका है। महंगाई ने शहरियों से अब नर्म बिस्तर भी छीन लिया। मुख्तलिफ कंपनियों के मैट्रेस की कीमत में 25% इजाफा हो गया। दुकानदार का कहना है कि हर हफ्ते नए निर्ख आ रहे हैं। खरीदारों ने दुकानों का रुख करना छोड़ दिया है। मौजूदा हुकूमत में ये 2 माह में 25% का इजाफा हो चुका है, और जिस तरह अब डॉलर जो कल का रेट है उस हिसाब से अभी कंपनी का राब्ता हुआ है, तो वो कह रहे हैं 10% का मजीद हम कीमतें एक्सटेंड कर सकते हैं जी, और इस वजह से कस्टमर न होने के बराबर है। दुकानदार ने बताया कि 10,000 रुपए वाला मैट्रेस 12,500 रुपए, जबकि 20,000 रुपए वाला मैट्रेस 25,000 रुपए का हो चुका है। पहले 25,000 में भी सेल नहीं है, जब 27,500 का हो जाएगा तो बिल्कुल ही गाहक न होने के बराबर हो गया है और लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। अब तो हमारे पास लोग कहते हैं कि मैट्रेस हमें 10,000 का मिले, तो 10,000 का तो कंपनी ऐसा कोई मैट्रेस ही नहीं है जो हम परचेज कर सकें, तो इस हिसाब से तो बिजनेसमैन बहुत परेशान है। दुकानदार ने अंदिया दिया है कि मैट्रेस चंद रोज तक 10% मजीद महंगे हो जाएंगे। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। अहमदपुर शिरकिया में 2,000 रुपए इमदाद का हसूल भी खवातीन के लिए अजाब बन गया। खवातीन कहती हैं दिन भर धक्के खाना पड़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 2,000 रुपए की रकम इमदाद का सिलसिला जारी है। 2,000 रुपए रकम वसूल करने में खवातीन को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से खवातीन का कहना है कि इमदादी रकम वसूल करने में सारा दिन लग जाता है। 2,000 वसूल करने में 2,000 धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक तक मैंने करूँ कोई खुशी कन पकान से आए खड़े सा, ठीक है ना। वहाँ 12-14,000 मिलता रहे, सारे कुछ 1 रुपया नहीं मिला। हाँ 2,000 से आखड़े से तो कोई दिक्कत ही नहीं दे, तो कोई दिक्कत ही नहीं दे। मेरे पैसे सब बंद हो गए, बेनजीर वाले, कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहा था मेरे पास। दुकानदारों का कहना है कि नेट स्पीड बहुत कम है, जिससे एक शनाख्ती कार्ड की तस्दीक पर ज्यादा वक्त लग जाता है। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि इस सिस्टम को जो है ना बेहतर से बेहतर किया जाए। सिस्टम जो है बहुत सारा जो है सुस्त रवि का शिकार है। 10 मिनट सिस्टम चलता है, आधा घंटा जो है ना सिस्टम ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से औरतें बेचारी बहुत परेशान होती है। आज सुबह से 6 बजे की लाइनें लगी खड़ी हैं, लेकिन सिस्टम सुस्त रवि के होने के शिकार की वजह से जो है ना ये बेचारी औरतें बहुत परेशान है। वसूल करने वाली खवातीन जलील ख्वार हो रही हैं। अगर इनका निजाम जो है वो बेहतर कर दिया जाए तो हो सकता है ये भी मौजूदा हुकूमतें कुछ मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही, अहमदपुर शिरकिया। मुल्तान के हल्का बीबी 217 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। मुस्लिम नून के उम्मीदवार सलमान नईम कहते हैं 4 साल अवाम के दरमियान रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन में शिद्दत पसंदी ला रहे हैं। इलेक्शन काम और खिदमत की बुनियाद पर लड़ना चाहिए।
ملتان کے صوبائی حلقہ 217 میں ضمنی الیکشن کے لیے گہما گہمی میں اضافہ۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم اپنی فتح کے لیے پر امید۔ روہی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انتخابی مہم بہترین انداز میں چل رہی ہے، عوام کی طرف سے بہترین رسپانس مل رہا ہے۔ 9 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور کوئی رات کے 3 بج جاتے ہیں۔ کل تو بلکہ اذانیں ہو گئی تھی، تو کیمپین تو زور و شور سے چل رہی ہے اور بڑا اچھا رسپانس ہے لوگوں کا۔ انشاءاللہ 17 جولائی کو لوگ جیسے نکلیں گے، ووٹ ڈالیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ جو ہے وہ ایز ایکسپیکٹڈ انشاءاللہ مسلم لیگ نون اس حلقے سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ سلمان نعیم کا کہنا تھا کہ 17 جولائی کو شیر کی جیت ہوگی۔ انتظامیہ کی طرف سے مدد ملنے کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ ایک جھوٹے انسان ہیں، مطلب ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، اس چیز کا ثبوت دیں کہ کوئی ڈی سی کسی کے پاس گئے ہیں، کمشنر صاحب کسی کے پاس گئے ہیں، اے سی صاحب کسی کے پاس گئے ہیں، کوئی ایک ثبوت تو دیں۔ باتیں تو میں بھی ان پہ اتنے الزامات لگاؤں گا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ان کا الیکشن گزر جائے گا، لیکن ایسا نہیں میں چاہتا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم کا مزید کہنا تھا کہ 4 سال سے عوام کے درمیان رہا ہوں، عوام سے مسلسل رابطہ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی غلط الزامات لگا رہے ہیں، کسی سے پرسنل نہیں ہونا چاہتا۔ شاہ محمود قریشی الیکشن میں شدت پسندی لا رہے ہیں، الیکشن کام اور خدمت کی بنیاد پر لڑنا چاہیے۔ کیمرامین ہارون علی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہم، پاور سیکٹر کے افسران اور ملازمین کو مفت بجلی نہ دینے کی ہدایت۔ سیکرٹری پاور ڈویژن کہتے ہیں پاور سیکٹر ایک جنجال میں پھنسا ہوا ہے، ہم اپنی لاگت بھی پوری نہیں کر پاتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 80 لاکھ بجلی صارفین کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ سیکرٹری پاور ڈویژن نے تجویز دے دی کہ مفت یونٹ ختم کر کے ملازمین کو الاؤنس دے دیا جائے۔ پی اے سی نے سیکرٹری پاور ڈویژن کی تجویز تسلیم کر لی ہے۔